Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of financial statement. You know it very well. Financial statement is prepared to know the exact financial performance and financial position of the business. Dear children, the statement that is prepared for the financial statement, income statement and balance sheet. One of the mode of income statement, trading account, has been explained for the sake of you in previous video. Yes, today I would like to tell you the profit and loss account. Trading account is prepared to ascertain the gross profit or gross loss of the enterprise, but the profit and loss account is prepared to know the exact figure of net profit. In format of profit and loss account, now this way, just you have to draw the line, middle of the page, just you will draw the thick line and then the amount column, here also the amount column. You can see. Now particulars, first column for the particulars, second column amount in debit side, particulars, amount in credit side. This one credit and this one debit. My dear children, profit and loss account for the year ending, just date. The format of profit and loss account, whether incurred in trading account, just the gross profit, so you can write over here in credit column gross profit because of this one is the income. Whether the organization is in loss position or the occurred loss, just we can write in debit column to gross loss for the year. So now by gross profit, after preparing the profit and loss account, after preparing the trading account, the gross profit, whether incurred in gross profit, just we can write in credit column of gross profit. व्यापारिक खाता बनाने के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, यदि हमको लाभ होता है उसे सकल लाभ कहते हैं, हिंदी में ग्रॉस प्रॉफिट को सकल लाभ कहते हैं, तो उसे क्रेडिट कॉलम में लिख देते हैं। यदि सकल हानि है तो डेबिट कॉलम में लिख देंगे टू ग्रॉस लॉस। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रिफर सच एक्सपेंसेज which involve in selling of product, administrative expenses, distribution of the goods. These are the expenses that is called the indirect expenses. All the indirect expenses are debited to the profit and loss account and all the incomes are credited in profit and loss account. अगर जो किसी प्रकार का इनकम होता है, आय होती है, तो उसे क्रेडिट कॉलम में, और जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं
अप्रत्यक्ष खर्च हैं, जो प्रशासनिक खर्च हैं, माल को बेचने का खर्च है, मतलब गोदाम तक माल को लाने के बाद उसके सेलिंग प्रोसेस में जो भी खर्च आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। ध्यान रहे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके बुक का 11, क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन, जनरल एक्सपेंसेस दैट इज द नेम गिवन, साधारण खर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, न तो ये माल बनाने का खर्च है न माल मंगाने का खर्च है। चूंकि खर्च है ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए हम इसे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, डेबिट कॉलम में जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है आपका 12,000, 12,000। उसके बाद चैरिटी, दान दिया, ये भी एक तरह का खर्च ही है इनडायरेक्ट, न तो ये माल मंगाने का खर्च है न माल बनाने का खर्च है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। टू चैरिटी, आपका हो गया 3,000 रुपए। उसके बाद ऑफिस लाइटिंग, ध्यान देंगे ऑफिस का बिजली खर्च, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि ऑफिस में जो बिजली खर्च होती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का खर्च होता है। तो टू ऑफिस लाइटिंग, वो ऑफिस का खर्च है, न कि माल बनाने और मंगाने का खर्च है। ऑफिस लाइटिंग 5,000। उसके बाद लॉ चार्जेस, कानूनी खर्च, कुछ लीगल खर्च, वकील को फीस देना या कुछ भी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू लॉ चार्जेस, लॉ चार्जेज आपका है 5,800। अब आप देखेंगे आगे है आपका एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन खर्च, माल को बेचने के लिए विज्ञापन किया जाता है, टीवी में ऐड दिया जाता है, मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट खर्च है। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपका है 14,200। एडवर्टाइजमेंट 14,200। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक आपसे कुछ खर्च लिया है, बैंक में खाता खोला गया ऑर्गेनाइजेशन का, तो मान लीजिए ब्याज लेना या जो सेवा देता है वो खर्च, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। टू बैंक चार्जेस, क्योंकि ये माल बनाने और मंगाने का खर्च नहीं है। बैंक चार्जेस हो गया आपका 1,200। उसके बाद कमीशन आपने दिया है, कमीशन किसी को, तो कमीशन भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ये हो गया 7,000। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्स, टू रेंट, किराया, रेट्स एंड टैक्स का, ये भी आपका इनडायरेक्ट खर्च है 30,000 रुपए। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो निवेश किया है आपने पैसा, उस पर इन्वेस्टमेंट पर आपको ब्याज प्राप्त होता है, न कि देते हैं, तो वो हमारा इनकम है। हम लिखेंगे बाय क्रेडिट कॉलम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका 12,000 रुपए, ये हो गया 12,000। उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब प्राप्त किया है,
भिन्न भिन्न प्रकार, ये भी इनकम हो गया। तो बाई सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट्स, सन्ड्री रिसिप्ट्स आपका हो गया 6,000 रुपए। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्च नाम ही दिया है तो 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, न तो माल मंगाने का खर्च है न बनाने का। अगर जो माल मंगाने और बनाने का खर्च रहता तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। 2,100। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई का खर्च और पेपर का, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500, 1,500। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, तो इधर क्रेडिट कॉलम में रहेगा 2,69,000, 7,69,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, 7,69,000। कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड रहता तो माल मंगाने का खर्च है, कैरेज आउटवर्ड मतलब इनडायरेक्ट बेचने का खर्च है, तो 2 कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड्स 20,000, 20,000। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आपका, ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे किए हैं अपने बिजनेस का, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो उसे डेबिट कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो भी टेलीफोन या मोबाइल का खर्च आया, टेलीफोन एक्सपेंसेस। इस तरह आप देखेंगे एक्सपेंसेस आया तो खर्च डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500, 13,500। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, 2 इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी आपका खर्च ही है, ये आपने डाला इसमें 2,500। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, भिन्न भिन्न प्रकार के खर्च, मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपका हो गया भिन्न भिन्न प्रकार के खर्च 7,100। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, छूट प्राप्त किया है आपने, तो इसका मतलब आपका इनकम हुआ, तो यहां लिखेंगे बाय क्रेडिट कॉलम में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है आपका 6,200। उसके बाद ट्रेवलर सैलरी आपने दिया है, 2 सैलरी ट्रेवलर, यात्रा के लिए वेतन दिया है, ट्रेवलर्स को सैलरी 60,000, 60,000। रिपेयर मरम्मत का खर्चा, 2 रिपेयर आपने लिखा, 2 रिपेयर 4,300। अब
उसके बाद कमीशन क्रेडिट, आप जिस तरह से कमीशन देते हैं उसी तरह से कमीशन पा भी सकते हैं। तो कमीशन क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय कमीशन। कमीशन क्रेडिट 2000। अब इसके बाद दोनों तरफ का टोटल करेंगे। देखें यदि डेबिट कॉलम एक्सीड करता है तो लॉस होगा और यदि क्रेडिट कॉलम एक्सीड करता है तो प्रॉफिट होगा। अब आप टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे दोनों साइड का। क्रेडिट कॉलम का टोटल कीजिए आप तो देखेंगे कितना हो रहा है 200। आपने सीधा सीधा लिख दिया और उसके बाद 6 2 6 6 12 4 16 9 16 4 20 5 25 को 5 6 1 7 2 9 7,95,200 रुपीज इधर का टोटल आया। फिर डेबिट कॉलम को टोटल करेंगे और 7,95,200 से माइनस कर देंगे तो वही आपका होगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। आप जोड़कर जब देखेंगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट 5,72,000। 5,72,000 आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा और यहां पर आप लिखेंगे टोटल 7,95,200। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप देखेंगे बेटा कि बहुत ही आसान होता है तरीका। जो भी एक्सपेंसेज होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, उनको डेबिट कॉलम में, जो भी आपके इनकम है उसे क्रेडिट कॉलम में, दोनों का डिफरेंस whether the credit column exceeds the debit, just the net profit occurred in the organization, whether the debit total of the debit column exceeds the total of the credit column, that will be the loss of the net loss of the organization. अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों एक तरफ जोड़ लेंगे, आप देखेंगे यदि डेबिट का टोटल अधिक होगा तो क्रेडिट का टोटल उससे माइनस करके तो वो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डेबिट कॉलम ही एक्सपेंस है पूरा, मतलब हमारे आय से ज्यादा खर्च है। और यदि इनकम वाला कॉलम अधिक होता है तो और खर्च हमारे कम होते हैं तो हमको प्रॉफिट होगा। सीधा सा फंडा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैलेंस शीट बनाना बताएंगे, जो हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज। फिर क्वेश्चन में ऑफेनली यू कैन फाइंड दिस वन इज द सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो द एडजस्टमेंट। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू द व्हाट इज द एडजस्टमेंट, देन यू कैन बी एबल, बिकॉज ऑफ दैट द ऑन अकाउंट द बुक्स ऑफ अकाउंट और केप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्रूवल बेसिस, मतलब उस साल का खर्च, चाहे वो बकाया हो चाहे एडवांस मिला हो, किसी भी प्रकार का खर्च हो उस साल के खर्च में ही जाएगा। तभी आपको फेयर व्यू, ट्रू इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट और द यूजर्स कैन बी एबल टू फाइंड आउट। अब आप देख सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी इनकम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही खर्चे जाते हैं जो माल बनाने के नहीं हैं और माल को गोदाम तक लाने के नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो माल बनाने का प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो होता है या माल को गोदाम तक लाने का जो खर्च होता है वही आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इस वीडियो के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखें। क्वेश्चन नंबर 11 देख करके हर हेड को एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू वेरी मच।